इन होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। आशा रब्बानी किताब दे रहे और सफ़ा 4 पर पेज नंबर 4 पर जाएंगे। पेज नंबर 4। खुदावंद कैसे तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में जाओ। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए तमाम खुद के खुदा तेरे आगे सब दरगाह खुला है। तुझे सब की मुराद मालूम है, तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पापों के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर हर कब तुझसे प्यार मोहब्बत रखें। अल्लाह को तेरे पाक नाम की पढ़ाई करें हमारे खुदा मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला और खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सलाह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह तमाम खुद के खुदा बाप, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल को तेरी हम करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा खुदा के घोड़े जहाँ गुनाह फैले जाता है हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ऐ कुद्दूस खुदा, कुद्दूस और कादिर, कुद्दूस और मेहरबान हम पर रहम कर। हम बैठ जाएंगे। लेट्स बी सीटेड। लेट्स bow our head in prayer। दोनों सरों को झुकाएंगे। ईद तस्लीश के बाद के 7वें इतवार की कालेक्ट। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। और खुदा हम तुझसे अर्ज करते हैं कि तेरा फजल हमेशा हमारे आगे पीछे चले और हमें सब नेक अमाल में हर वक्त मसरूफ रखे हमारे खुदा मसीह के वसीले से। Exodus 17, verses 1 through 7. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin, according to the commandment of the Lord, and camped in Rephidim. But there was no water for the people to drink. Therefore the people contended with Moses and said, "Give us water that we may drink." So Moses said to them, "Why do you contend with me? Why do you tempt the Lord?" And the people thirsted there for water. And the people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" So Moses cried out to the Lord, saying, "What shall I do with this people? They are almost ready to stone me." And the Lord said to Moses, "Go on before the people and take with you some of the elders of Israel. And take in your hand your rod with which you struck the river, and go. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So he called the name of the place Massah and Meribah, because of the contention of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" This is the word of the Lord. Thank you, God. For the Psalms, we'll read in portions. Psalm 78. First, we'll read verses 1 through 4, then 12 through 16. Psalm 78. Verses 1 through 4. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. कदीम में मैं कहूँगा Open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. You will not hide them from their जिन children. गाँव उसकी औलाद से पुरुषा नहीं Every रखेंगे generation. और कहने मुश्किल के खुदावंद की तारीफ उसी खुदा अजायब जो उसने की है बताएंगे। We will now read verses 12 to 16. Marvelous things he did in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. तो समुद्र के तो हिस्से करके उसको पार उतारा और पानी को उसकी तरह खड़ा कर दिया।
In the daytime also he led them with the cloud, and all the night with a light of fire. तो देवान ने चट्टान को चीरा और उसने गोया और चक्कू लाया. He also brought streams out of the rock and caused waters to run down like rivers. नदियों से गुलाब बना करते गए और देवान ने सबरा के सब कृषि की. This is the word of the Lord. Thanks be to God. For the second reading, we'll read Philippians chapter 2, verses 1 through 13. Philippians chapter 2, verses 1 through 13. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him, and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do for his good pleasure. This is the word of the Lord. Thanks be to God. आप सब पढ़ो मत्ती की न्यूज़ का 21 बाब उसकी 23 आयत से लेकर 32 तक. Gospel of Matthew chapter 21 from verses 23 to 32. मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरानी ने उसके पास आकर पूछा, तो ये काम किसके अधिकार से करता है और तो ये अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं. यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में वाद विवाद करने लगे. यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसकी प्रतिथि न की? यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता जानते हैं. सौरों ने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते. उसने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता ये काम मैं किस अधिकार से करता हूं. क्या तुम समझते हो कि मनुष्य के 2 पुत्र थे? उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर. उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया. उसने दूसरे के पास आकर उससे कहा. उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया. इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने. यीशु ने उनसे कहा, तुम सच सच कहता हूं कि वसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं. यूहन्ना धर्म के मार्ग में तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतिथि ना की, पर वसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसकी प्रतिथि की. और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि तुम उसकी प्रतिथि कर लेते. ये मसीह की इंजील है.
खुदा शुक्र है कि हम तेरे हैकल में तेरे नाम में आ सके। बाप तुमने मौका दिया कि हम न जिंदा रहे पर तेरी इबादत कर सकें। आज शाम तुझसे मांगते हमारे बीच में हो, खुदा तुमसे बोलो बातचीत कर। हम अपने तमाम उन लोगों के लिए मांगते बाप जो किसी न किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनको बरकत देना। खासतौर से हमारे बीच में मौजूद हो, हम तमाम यीशु के नाम में बांधते और बाप मांगते हैं तेरा डेरा हमारे बीच में आ जाए। खुदावन मुझे अब सलीब पीछे खुदा मसीह के वसीले से आमीन। हम बैठ जाएंगे। खुदा शाम के लिए मुझसे घर फिर से आ सके। हम जानते हैं कि आज भी लोग परेशान हैं, आज भी लोग डरे हुए हैं और खुदा की हकीकत में आने से दरेक करते हैं, दिक्कत है उन्हें। पर हम यहाँ हैं, हम उसकी बात करेंगे। अगर आप पिछले थे और मैं समझता हूँ नहीं थे में से कोई, सिर्फ फैमिली के सिवा, पिछले 2 हफ्तों में हमने जिस विषय पर ध्यान दिया था, याद है किसी को क्या था टॉपिक हमारा? जॉन चैप्टर 14, जो सब्जेक्ट अलग है। और वो हमारा विषय था जिसमें यूहन्ना के 14 बाब पहली आयत किसी याद है? यू रिमेंबर? तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर ईमान रखो। और ये हमारा विषय था 2 संडे पहले, लास्ट संडे भी यही था और आज भी हम इसी बात पर सोचेंगे इसका मतलब क्या हमारे लिए। क्योंकि जिस दुनिया में हम हैं, परेशानी के समान बहुत हैं। मैंने पहले भी कहा दिक्कत इतनी ज्यादा है, हम क्या करें, घबराए रहते हैं। और सिर्फ हम नहीं, शागिर्द घबराए हुए हैं। हम दुनिया में चाहे अपने जॉब की तरफ से परेशान हैं, चाहे अपने रिश्तेदारी में परेशान हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे मुल्क के अंदर परेशानी है, चाहे कोई दिक्कत क्यों ना हो, हम परेशान हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट। और इवन शागिर्द परेशान होते थे, वो दिक्कतों का शिकार थे। किस दुनिया में रहते हैं और उसके बीच में खुदा मसीह 14 चैप्टर में आता है, वो कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर ईमान रखो। अब घबराने के सारे समान हैं, सब चीजें परेशान करती है। बीमारी आ जाए तो हम परेशान हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आए तो हम परेशान हैं, हमारा कोई बच्चा बिगड़ गया तो हम परेशान हैं, अगर दोस्तारी में ना इत्तेफाकी तो हम परेशान हैं, जॉब पे। इवन शागिर्दों को हम पढ़ते हैं कि जब खुदा से उसी साथ चलते थे तो वो परेशान हो जाते थे। एक जगह वहां मैंने पिछले बार बोला ये कि जब खुदा से मसीह उस वहां पर वो चंगाई करते, फिर वो कहता चलो हम यरूशलेम चले, तो शागिर्द क्या कहते हैं? याद है क्या कहा? शागिर्द चलो हम भी इसके साथ मरने चले। वो दुखी थे, चलो हम भी इसके साथ मरने के चले, तो जा ही रहा है। वहां जब वो सामरी स्त्री का बयान, जहां पर वो उसको उस सामरी स्त्री बात करता है और जब वो समझाता उन्हें कि तुम्हारे बाप दादाओं ने वो मन्ना खाया जो जिस्मानी था, मैं वो रोटी हूं आसमान उतरी, तो क्या कहा लिखा आपको याद है वर्ष में क्या है? बहुत से चेलों को ये बात नागवार गुजरी, चेलों को पसंद नहीं आई उसकी बातें, परेशान थे वो, ये कैसी बात कर रहा है, कौन उसके बीच जाएगा। तो हर तरह की परेशानी है। इवन जब कुछ ना था तो आदम हवा परेशान थे, परेशानी ये खुदा ने सब दे दिया, सब खाओ पियो। पर जो हवा का जो परेशानी थी कि जी वो जब सांप से बात कर दी, सब दिया, ये मना कर दिया खाने, यानी सब तो दिया है पर इसको भी मना किया, वो उसकी परेशानी बन गई और वही सब इंसान को पता चला। क्या है? कोई ना कोई परेशानी हमें परेशान करती है आज के जमाने में, आज की दुनिया में। और सवाल उठता है कि सारी परेशानी है, सब तरफ से परेशानी के समान सारे हैं, पर उम्मीद की सिर्फ एक कर है, और वो यीशु मसीह यहाँ इस आयत में कहता तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान रखो। उस सारी परेशानियों का जड़ ये है यीशु पर ईमान लाना। सिर्फ एक ही तरीका है, कोई और तरीका नहीं, कोई और रीजन नहीं कि हम किस तरह अपनी परेशानी से बच सकते हैं। परेशानी चलती रहेंगी। और वो कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, तो खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर ईमान रखो। और इसके आगे वो बयान करता मेरे बाप घर की जगह पर उन बातों नहीं आई, पर हम इन्हीं पहली आदत के आदि आदत देखेंगे। परेशानियों और समस्याओं का हल क्या है? मुझ पर ईमान रखो, मुझ पर विश्वास करो, और ये सारी चीज तुम्हारी ठीक है। अगर पिछले त्योहार में उसके पहले हमने इन्हीं बातों को पे गौर किया जो अलग अलग चैप्टर्स हमने ली थी कि किस तरह
दिक्कत सब तरफ है, पर खुदा का हाथ उनके ऊपर बना हुआ है। साम 34 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसने मेरे डर को हटा दिया क्योंकि मैं उसके पास गया। साम 34:4 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 34:22 में कहता है, यह अपना यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। खुदावंद अपने लोगों के प्राणों को बचाता है, वो उनकी हिफाजत करता है। फिर वो कहता, ज़बूर में कहता, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान जो कभी टलता नहीं। अजीब बात है ये, अगर जो खुदा पर भरोसा रखते हैं वो पहाड़ों के समान वो कभी हिलते नहीं, वो खड़े रहते हैं। तो एक ईमानदार इस दुनिया में जबकि सारी परेशानियां हैं, सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो किसी तरह की हो, और आज इस जमाने में तो वो कोविड से लोग और परेशान हो गए। सवाल उठता है, क्या है हमारे पास उपचार? खुदा पर भरोसा रखने का, खुदा पर विश्वास करने का। ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो प्रिकॉशन ना लें, चाहे मास्क की बात है, मैं निकालने में दूर आपसे बात, चाहे मास्क की बात है या होशियारी की बात, बाहर में जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है, वो कहता है उसको भरोसा रखो ताकि तुम बचे रहो। कहता मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। नई बात में कहता है, वो तेरे हजूर खड़े रहते हैं, तुझे संभालते हैं, तुझे लेकर आगे जाते हैं। अब कुछ आज मैं चाहता हूं जिसको हम कलाम से देखें। आज परेशानी ये है कि कई लोगों से मेरी बात हुई, थोड़े परेशान हैं, खुदा की हैकर में आने के लिए थोड़ी दिक्कत है कि, और वैसे प्रकाशन सारे हमने दिए हैं कि ये दरवाजा दूसरे दरवाजे जाओ, मास्क होना चाहिए। चर्च के बाद हम सब कोशिश करते हैं कि जो चर्च में मिलता है वो बेंचेस पहुंचता कि सफाई रहे और किसी तरह से कोई लगने का मसला ना रहे। ये सारी जरूरती हैं, ये करते हैं। पर इसके बाद एक और बड़ी बात यह है कि हम खुदा के मानने वाले, वो हमें संभालता है, वो लेके चलता है, वो हमारे साथ हमें लेके आगे जाएगा और हमें बचाएगा। उसका उस काम बचाना है। अब पीछे कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, कह लगे कि बस आप तो ठीक कह रहे हो, पर अगर कुछ हो गया, और सही बात है, बड़ा सही क्वेश्चन है, हम परेशान हैं दिमागी तौर से कि अगर कोई परेशानी हम पर आ गई तो क्या होगा। अब मेरा सवाल यह कि अगर कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, क्या उपचार हमारे पास है? अगर कोई परेशानी आ गई, किसे पुकारते हैं? खुदा को। तो खुदा को पुकारते हैं तो उससे क्या करते हैं? खुदा सारी चीजों का हल तेरे पास है, कोविड का नहीं है। एक कोविड ऐसी इससे है जिसने हमें घर बढ़ा दिया। मैं कुछ आज जाता हूं, आयत कलाम पे देखें, आप उसमें जाएं, दूसरी तवारीख और दूसरा इतिहास, उसके जब हम देखें दूसरा इतिहास उसका 20 बाब। और यहाँ पर लोगों के साथ बड़ी समस्या, खुदा की कौम है और उनकी समस्याएं बहुत बड़ी है। बनी इस्राएल की पूरी जिंदगी इस बात को बताती किस तरह समस्या चलते रहे। अब जो दूसरा इतिहास जो 2 क्रॉनिकल है चैप्टर 20, और वहां पर जो बयान यहाँ पर है कि उनके खिलाफ एक बड़ी, अगर मैं पढ़ दूं आपके सामने 2 क्रॉनिकल या दूसरा इतिहास चैप्टर 20, और मैंने कहा है, और यशबत यहूदा और यरूशलेम और जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए शहर के आए खड़ा हुआ और कहा है खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा कि तू ही आसमान का खुदा नहीं, और क्या कौम हो कि सबकी मलकुत पर हुकूमत करने वाला तू है और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कोई नहीं तेरा सामना कर सकता। अब यहां जब आया इसके पहले की वर्सेस पढ़े तो वहां पर हम उसके बारे में देखते हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है और अदोम के साथ जंग की होनी है। अदोम एक दूसरा वो था और वो उनसे लड़ने आ रहा है। अब ये लोग बड़े परेशान है, खुदा क्या करें, ये बड़ी कौम, इनके पास हजारों लोग हैं, हमारे पास नहीं है, वो हमें मारने हमें खत्म करने आ रहे हैं। और वो खुदा के सामने कहते हैं खुदा जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, तू ही ने इस
सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल अब्राहम की नस्ल की हमेशा के लिए नहीं दिया? क्या तूने नहीं दिया? चुनांचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए एक ऐसा मकदस बनाया और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आए, हम पर पड़े, जैसा तलवार या आफत या बवा या काल, तो हम इस घर के आगे तेरे हुजूर में क्या करेंगे? खड़े रहेंगे। कोई बला आए, हम तेरी हैकल के सामने खड़े रहेंगे, वहां हमारी हुजूरी होगी। और कोई बला हम पर आए, वर्ष 9, जैसे तलवार या आफत या बवा या काल, तो हम इस घर के आगे, इस घर के आगे खुदा की हैकल खड़े रहेंगे, तेरे हुजूर में खड़े रहेंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमोन और मोआब, कोहे शहर के लोग जिन पर तूने बनी इस्राएल को, जबकि वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे, हमला करने ना दिया, बल्कि वो उसकी तरफ से मुड़कर उनको हलाक किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हम को तेरी मिरास में, जिसका तूने हमें मालिक बनाया है, निकालने को आ रहा है, वो हमें यहां से खाली कराना मांगते हैं। हे हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बोग के मुकाबले जो हम पर चढ़ाता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। वो कहते हमें नहीं मालूम क्या करें। खुदावंद, इतनी बड़ी फौज आ रही है, ये हमें हलाक करने आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आता, हमें नहीं मालूम क्या करें। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तेरा में जाए, तेरी रिवायत में 20 बाब के 2 तवारीख 2 क्रॉनिकल लिखा हुआ है, तब सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच यजीएल बिन जकरिया बिन बिनाया बिन योएल बिन मतिया, एक लावी पर जो बनी आसफ में था, खुदावंद का रूह नाजिल हुआ और वो कहने लगा, अये तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, अब ये नौबत हो रही है, और ऐ बादशाह यूसुफ़, तो खुदावंद तुमको यूं फरमाता है, तुम इस बड़े अम्बोग की वजह से ना डरना ना घबराओ, क्योंकि यह जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल जिनका सामने करने के लिए जाना, देखो वो सीस की चढ़ाई पर आ रहे हैं और दश्त यरूशलेम के सामने की वादी के सिर पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह पर लड़ना नहीं हो पड़ेगा। खुदा कह रहा है इस्राएल से, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद को की नजात को तुम्हारे साथ देखना। खौफ ना करो, हिरासान ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। खुदा कलाम पहुंचा, वो कहता सारी काम वो खड़े हुए हैं घर के सामने, बच्चे बीवी सारे खुदा साथ बड़ा, क्या करें, हमें समझ नहीं आता किस तरफ जाए, कौन सा तरीका मान लिया है। और खुदा का रूह आता है, उनसे कहता है, तुम घर बार लिखा हुआ है 18वीं आयत में, और यूसुफ सरनगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया। अब सारे खुदा सामने लेट गए जमीन पर सजदा करने के लिए। और बनी के हाथ और बनी कोरा और लावी बुलंद आवाज से खुदावंद सारे खुदा की हम करने लगे और खड़े हो गए। अब वो गाना गा रहे हैं, मुसीबत है बहुत बड़ी, एक बड़ी कौम चली आ रही, उनको हलाक करने के लिए उनको मालूम खबर पड़ गई कि हमें मारने आ रहे हैं, कोई तरीका नहीं। वो कहते हमें समझ नहीं क्या करें।
तो वो खुदा घर के सामने खड़े जाते हैं, खुदा तू ही संभालेगा, तू ही एक चारा है, कोई और नहीं है। जिंदगी की परेशानी कई बार वहां पर पहुंचा देती जहां पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता और कहीं जा नहीं सकते। 20वीं आयत में दूसरी तवारीख क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 20 में लिखा हुआ है, और वो सुबह सवेरे उठकर 10 में निकल आए और उनके चलते वक्त यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों मेरी सुनो, खुदा अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसने नबियों का यकीन करो, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। जब उसने कौमों से मशवरा करके तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए क्या करते थे, वो लश्कर के आगे चलते हुए खुदावन के लिए गीत गाते थे और हुस्न तुकद्दुस के साथ उसकी हम करके और कहें, खुदावन शुक्रगुजारी करो कि उसकी रहमत होती है। और वो गाना गाने लग गया। अजीब बात है, अभी परेशान हो रहे थे, खुदावन क्या करे, कोई रास्ता नहीं है, और खुदा का नबी उनको समझाता देखो ऐसा करो। अगर वो खुदा के सामने खड़े होकर दुआएं करते हैं और फिर सलाह करते हैं, खुदा के लिए गाएंगे। अब वो गाने गा रहे हैं, पीछे से फौज आ रही है, वो खुदा की हम करते हैं और हम नहीं कहते हैं खुदा शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत होती है। समस्या तो बहुत बड़ी थी पर समाधान छोटा सा था। तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर ईमान रखो। समस्या बहुत है बनाने की, पर क्या करो, मुझ पर ईमान रखो। मेरे पास सोल्यूशन है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कलाम की सारी तालीम ये है, जिसने उसकी उद्देश्य की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाया। खुदा वो खुदा जो संभालता है। तो ये काम दुआएं करते, खुदा हमने किया फैसला कि तेरे हैकल की तरफ मुंह कर खड़े होंगे। जब हम पर कोई बला आएगी, जब मुसीबत आएगी, जब संकट आएंगे, जब कोई ऐसी बात छा जाएगी इसका कोई रास्ता नहीं है, हम पास एक ही रास्ता है, खुदा के सामने झुकना। और खुदा उसकी रूह को कायल करती गाने गा खड़े। हम तो परेशानी, हम कई बार देखता हूं मैं, हमारे मुंह नहीं बोलता खुदा की हम गाने के लिए, वैसे भी है कैसे गाएंगे हमने, अरे आज जिंदा हो तो गा लो, मुर्दे नहीं गाते। कलाम में लिखा है मुर्दे खुदा की हम नहीं करते। खुदा ने जिंदगी दी है, खुदा के लिए गाओ। परेशानी बहुत है, उसकी हमने गाओ, उसकी सताइश करो, खुदा जिंदा है, ये मान चलो वो तुम्हारे साथ है। और यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं वो तमाम लोग खुदा के लिए गाना। और अगर आप इस चैप्टर घर जाकर पूरा पढ़ें, then we see that all those people were killed, not the people of Israel, but the other people, those who were coming to kill them, and they got all the wealth from there. कैसे? तुम्हारा मन ना घबराए, खुदा पर ईमान, मुझ पर ईमान रखो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना निकालूंगा। I will never leave you, never forsake you. कोई भी वो हो, परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, जिस दुनिया में आप और मैं हम हैं, there is no end of problem. कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ चलता हूं। अपने घर में कई बार मैं बात करता हूं कि एक चीज ठीक होती, कुछ बात बिगड़ती, पर दुनिया तो यही है, ऐसी चल रही है। पर सबसे बड़ी बात है, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान रखो। सबसे जरूरी बात है खुदा पर ईमान रखना। पर सवाल उठता है कि क्या आज हम जिस दुनिया में हम ईमान है हमारा नहीं। We can talk, we know the language. Oh brother, praise the Lord. Oh खुदा ने, हम नहीं जानते ABC खुदा की, हमारा ईमान भी नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो सिर्फ बातें करना सीख गए, गान बजाना सीख गए। अगर हम खुदा के लोग हैं तो खुद ये साबित आपके जीवन से होगा, आपके कामों से होगा, आपकी सब कुछ बात से होगा कि आप खुदा को जानते हैं, उसको जानते हैं। कलाम देखा कि आओ हम खुदा के पास चलने को कहता है, खुदा को शुक्रगुजारी करो, उसकी रहमत अब तक की है। मैं अक्सर ही कहता हूँ, हम जिंदा इसलिए नहीं कि हम अच्छे लोग हैं या हमें कोई खासियत है, पर ये खुदा का रहम है जो हर दिन मुझे लेकर चलता है, हर दिन मेरी सहायता करता, हर दिन अपने हाथ मुझ पर रखता है। हमने नहीं समझ लिया कि नहीं हम बचा लेंगे अपने आप को, मर गए वो जो बचने बैठे थे,
जो छुपा रहे वो चले गए। हम सोचते नहीं, अरे खुदा तो ऐसा खुदा है जो हमें लेकर चलता, बचाता, संभालता, उसके हाथ इतने बड़े हैं कि वो आपकी सहायता कर सकता। पर हमने खुदा को लिमिटेड कर दिया है। हमने खुदा को ये समझ लिया कि मुझे याद है जब कुछ लोग जानते हैं कि एक बच्चे को बदरू लग गई थी और उन्हें कॉल किया और हमसे कहा कि आए पैसा हम बड़े परेशान हैं, ये बदरू परेशान करती है लड़की को, इतनी बड़ी बात है। और हम इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं जानते, ना हम कोई ऐसे वो हैं, पर खुदा के भरोसा से कलाम की तालीम को हम जानते हैं। और हम दुआ करने गए वहाँ पर, और जब दुआ जाने का प्लान बना तो एक अच्छे ईमानदार मुझसे उन्होंने कहा बुलाकर, एक बात सुने, आप मत जाओ। क्यों? कहना ये बदरू है, ये जो आता है उसमें चिपक जाती है, आप मेरे बोलो कि मुसलमानों पास जाओ। मैं शौक इसलिए कि एक मसीह ये बात बोले कि बदरू है तो हम वहाँ ना जाएं, वो हमें लग जाएगी। मैंने कहा अगर जिस दिन मैंने ये मान लिया उस दिन मेरी पादरी खत्म हो गई, उस दिन मेरा ईमान का सारा जनाजा निकल गया। और हम गए, हम खुदा भरोसा कर गए, खुदा हमारे साथ है। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं निकालूंगा नहीं। और खुदा ने अजीब काम किया वहाँ। तो होता क्या है, हम सारी बातें करते हैं बड़े बिलीवर्स होने की, और वो लोग जल्दी से बड़ी अच्छी अच्छी बातें, खुदा ने क्या नहीं किया, मेरे लिए क्या किया। पर जब ऐसे मसले आए जब मैंने कहा अगर मुझे चिपक भी जाएगा तो दिल में सोचा, अगर लग भी जाए, अगर मुझे कोई नहीं, पर इस बच्ची को बचना चाहिए। और खुदा वो खुदा है जो अगर उसे बचाएगा तो मुझे बचाएगा। इस दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, पर कलाम की तारीफ ये है तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर न करे, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। तो आज आप और मैं इसलिए हम खुश होते हैं कि खुदा हमारे साथ है, जो कि बड़ी अजीब बात है। काम आसमान का खुदा और काम जमीन की मिट्टी, काम दुनिया का बनाने वाला और काम एक छोटी सी क्रिएशन, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे लेके चलता, बचाता। वो बनी इस्राएल में जब नबूवत हुई उसने कहा खुदा का कहता है डरना मत, वो करेगा सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हें लड़ना नहीं, तुम खड़े होकर देखना है। और आज भी यही बात है कि हम खुदा पे भरोसा रखें, जो जरूरी है। जिसका कई बार कहता हूं कि लोग इस तरह की चीज गलत समझते हैं, वो समझते हैं इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको इतनी अकल है, दिमाग में भेजा है कि आप जब चलते हो सड़क के बीच में नहीं चलोगे, इसलिए नहीं चलोगे ये अगली कार आगे आप हो जाएगी, तो आपकी अकल ये कि आप साइड से चलोगे। तो कई चीजें हैं जो हम दिमाग से सोचते हैं और हम उसके अनुसार करना है। गवर्नमेंट ने कहा, डायरेक्शन ने कहा, दूर दूर बैठे लिमिटेड लोग हैं, हमें करना है। फेस मास्क पहुंची वो हमें करना है, पर इसके से अलग होकर बचाने वाला सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है। कितने लोग इस दुनिया में चले गए और वैसे ऐसे नहीं गए अपने घर बैठे, वो अस्पतालों में थे भर्ती, वो एडमिट थे, नर्सिंग होम में थे, वहां चले गए। ये देखो खुदा के वरना। पर हम जिस दुनिया में हम जो परेशान होते हैं, बाइबल की तालीम यही है, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, तुम मुझ पर ईमान रखो, मेरे बाप के घर बहुत से स्थान है। आइए हम दुआ करें और खुदा से हम झुके, खुदा हम तुझे भरोसा करते हैं, हम तुझे विश्वास करते हैं, हमें ऐसा ईमान दे ताकि हम तुझ में और बने रहें। आइए हम दुआ करें। खुदा तुम्हारा खुदा जो हमसे प्यार करता है, दुनिया में घबराने के समान तो बहुत है, पर एक उम्मीद की किरण है और उसमें शक नहीं होना चाहिए। तकरार कर तुम्हारा मन ना घबराए तो खुदा पर ईमान, तुम मुझ पर ईमान रखो। तुझ पे ईमान रखने से ही सारी समस्याओं का हल है, अगर हम वाकई ईमानदार हैं। हमारे बाद जबकि आज दुनिया में सारी परेशानी बसी हुई है, लोग हर तरह से खुदा जॉब की तरफ से, फाइनेंशियली, बीमारी से, मौत से परेशान है। तमाम त्यौहार हमें ये समझ देना कि हमारा दिल ना घबराए, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, वो जो करेगा हमारे ठीक करेगा, हम सबके साथ हो। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।